Good morning, student. Today we take up our third play, The Monkey's Paw. When I took your physical classes, I have completed two plays. Now we take up our third one, Monkey's Paw. Here we can say the longest play in our syllabus. It covers nearly 25 pages. बेटा ये अपने सिलेबस में सबसे लंबा प्ले है, लगभग आधा सिलेबस कवर करता है. हेयर वी फाइंड द प्ले इज फुल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. द प्ले इज टोटल डिफरेंट फ्रॉम आवर वी कैन से अदर प्ले. जो प्ले आपने पढ़े हैं या पढ़ोगे, ये जो नाटक है अपना ड्रामा, ये दूसरे प्ले से बिल्कुल अलग है. हेयर यू विल फाइंड सम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. It has horror and suspense in it. From the beginning to the end, we keep turning the pages. What will happen in the end? शुरू से अंत तक हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा. It means the play has been set in a house. It is near a cemetery. The play has been, we can say, dramatized in a house that is located near a cemetery. ये जो प्ले है अपना, जहाँ पर इसको बेटे ड्रामेटाइज किया गया, ये कब्रिस्तान के नज़दीक एक घर है, वहाँ पर इसको सेट किया गया है. देर आर ओनली 4 कैरेक्टर्स इन द प्ले. हमारे इस प्ले में वी डोंट हैव मैनी कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक वी कैन से स्लीप वॉकर्स एंड अदर. हेयर there are only 4 characters. 4 ही पात्र है. 3 characters belongs to one family. Their names are Mr. White and Mrs. White, both husband and wife, and their son Herbert, and another character Mr. Morris. Here Mr. and Mrs. White and their son Herbert live in an old fashioned house. As I discussed that the house is near the cemetery. एक पुराना सा घर है जो कब्रिस्तान के नज़दीक है. ये कपल अपने बेटे के साथ वहाँ रह रहा है. When the play begins, Mr. White and Herbert are playing chess. दोनों ही बाप और बेटा चेस खेल रहे हैं. Mr. White is losing the game. Herbert is an obedient son. He works in an electric company. We can say he works in a shifts also. Mrs. White is not seen in the beginning. In the, we can say, mid of the play, you will find she appears. जब आपका नाटक ड्रामा आधा तकरीबन चला जाता है, तब पता चलता है कि मिसेस वाइट स्टेज पर आती है. Now the father and son stop playing because, as I told you, Herbert works in a company. Now it is time to go to work. Morris is a family friend of the Whites. Here I am talking about the 4th character, Morris. He often comes to meet them. He has served in the British Army in India. His post has been Sergeant Major. उसकी जो पोस्ट है वो सार्जेंट मेजर की है. तो therefore his name has been called in the play Sergeant Major Morris. Now he is a retired person. He has a monkey's paw. He narrates his experiences of India. He usually narrates Mr. White and Mrs. White some mysterious stories, like the stories of ghosts, witches and magicians. As we know that our country has been a land of, we can say, magicians, some we can say witches and horror ghost. Here he tells the couple such type of stories to entertainment, and we can say you can call it. Then
when he was in India serving in army, an Indian fakir gave Maurice a monkey's paw. It could do miracle in someone life. एक जब भारत में वो सेवा कर रहा था आर्मी में, तो एक फ़कीर ने उसको एक बंदर का पंजा दिया, और ये ऐसा पंजा था, ऐसा जादू कहे कि ये किसी के जीवन को बदल सकता था. बट द फ़कीर टेल्स मॉरिस दैट द डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल. वी कैन नॉट इंटरवीन द डेस्टिनी ऑफ समवन, वी कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी ऑफ समवन. लेकिन फ़कीर ने ये कहा कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भाग्य है वो बहुत बड़ा है, और हम उसको बदल नहीं सकते, और न ही हम उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते. या इफ ए मैन ट्राइज टू चेंज हिज डेस्टिनी, ही हैज़ टू पे ए हैवी प्राइस फॉर इट एंड रिपेंट लेटर ऑन. यदि कोई व्यक्ति डेस्टिनी को बदलने की कोशिश करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है और बाद में अफसोस करना पड़ता है. नाउ मॉरिस इज फेड अप विद दिस पा. अब मॉरिस काफ़ी लंबे समय से इस पा को, पंजे को अपने पास रख रहा है, लेकिन अब इससे छुटकारा पाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट. सो सिटिंग एट मिस्टर वाइट हाउस, मिस्टर मॉरिस थ्रोज इट इन टू द फायर. जब वो वहाँ पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, when they were talking about monkey's paw, there are only 3 characters, 3 persons, we can say Mr. and Mrs. White and Mr. Morris. जब वो बंदर के पंजे की बात करता है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि 4 ही व्यक्ति ड्राइंग रूम में हैं, मिस्टर एंड मिसेस वाइट और मिस्टर मॉरिस. हर्बर्ट इज ऑन ड्यूटी. हर्बर्ट अपनी ड्यूटी पर है. नाउ ही थ्रोज मिस्टर मॉरिस थ्रोज इट इनटू द फायर, बट मिस्टर वाइट टेक्स इट आउट फ्रॉम द फायर. वो उसे आग में फेंक देता है, लेकिन मिस्टर वाइट उसको आग से निकाल लेता है. मिस्टर मॉरिस वार्न्स मिस्टर वाइट नॉट टू यूज इट, लेकिन मिस्टर मॉरिस कहता है इट इज यूजलेस थिंग, डोंट यूज इट, इट विल ब्रिंग रूइन इन योर लाइफ. इसको यूज मत करो, ये आपके जीवन में बर्बादी ला देगी. चेतावनी देता है. मिस्टर मॉरिस warns them. Mr. and Mrs. White become greedy. They want to be rich by using this paw. लेकिन पति और पत्नी दोनों लालची हो जाते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं क्योंकि वो अमीर बनना चाहते हैं. Now the couple forget what has been warned by Mr. Morris. अब ये जो कपल है, ये क्या है डियर, लालची हो जाता है और इसको भूल जाते हैं कि जब मिस्टर मॉरिस बता रहा था तो इस मंकीज़ पा की क्या डिफेक्ट्स है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है. सॉरी, आई बैग पार्डन, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट ये जो बेटे बंदर का पंजा है, इससे 3 विशेस कैन बी फुलफिल्ड ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन. इसकी खासियत क्या है? 3 इच्छाएं पूरी हो सकती है 3 व्यक्तियों की अलग अलग. Here we can say you will find that अब यहाँ पर you can make 3 wishes and the monkey's paw will fulfill them. अब बंदर के पंजे की खासियत क्या है? आप 3 इच्छाएं कोई मांग सकते हो और ये पूरी होगी. नाउ मिस्टर मॉरिस tells them not to use it, but the couple do not, we can say, listen to him. Now Mr. Morris has left the house, he has gone to his home. Now Mr. Morris takes the paw, now Mr. White takes the paw on his palm and wishes for the 200 pounds. मिस्टर मॉरिस जब घर चला जाता है तो मिस्टर वाइट बंदर के पंजे को अपने हाथ में लेता है एंड ही विशेस फॉर हिज फर्स्ट डिज़ायर. अब वो पहली इच्छा रखनी चाहता है. यस, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट डिज़ायर?
फर्स्ट विश दैट इज ही वांट्स टू हैव 200 पाउंड्स। उसकी पहली इच्छा क्या होती है कि वो 200 पाउंड पाना चाहते हैं, कहीं से 200 पाउंड आ जाए, बिकॉज नाउ दे आर पुअर, दे वांट टू बी रिच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू रिमूव देयर पुअर्टी बाय वी कैन से यूजिंग दिस मिरेकल, बाय यूजिंग दिस पा। इस पंजे को यूज करके बेटे वो क्या अमीर बनना चाहते हैं। यस, दे बिकम एंग्री एज दे डोंट रिसीव एनी मनी फॉर मैनी डेज। काफ़ी दिनों तक उनको कोई पैसा नहीं मिलता। दे टेल दीज थिंग्स टू हर्बर्ट दैट वी हैव मैजिक, वी कैन बी रिच, बट हर्बर्ट रिजेक्ट्स दोज आइडिया। ही इवन रिब्यूक्स हिज पेरेंट्स। हर्बर्ट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ही मेक्स फन ऑफ हिज पेरेंट्स एज वेल एज बाप। वो अपने माँ बाप का और उस पंजे का मजाक उड़ाता है कि हाउ कैन ए पर्सन बी रिच बाय यूजिंग दिस पा, बाय यूजिंग दिस यूजलेस थिंग। ही डज नॉट बिलीव इन मैजिक। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता और वो कहता है एक कैसे आदमी अमीर बन सकता है इस पंजे को यूज़ करके। बट मिस्टर वाइट एंड मिसिज वाइट आर स्टिल होपफुल। दे नो दैट someday the pa will bring money. Yeah, after some time they get an envelope. They become happy to think that the envelope might have 200 pounds, but they are disappointed to find a receipt in the envelope. जैसे कि उनको लिफाफा मिलता है, दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं कि शायद इस लिफाफे में 200 पाउंड होंगे जो उन्होंने मांगे थे। लेकिन जैसे ही उसको खोलते हैं इसमें एक रिसीट होती है और कुछ नहीं होता, एक रसीद जिसे कहेंगे। यस, बट आफ्टर सम टाइम ए पर्सन अपीयर्स एंड टेल्स द वाइट हाउ देयर सन इज कॉट इन द मशीन एंड किल्ड। एक व्यक्ति उनके घर आता है और बताता है कि कैसे मशीन उसके बेटे को निगल गई जहाँ पर वो काम करता था कंपनी में। Yes, he hands over a check of 200 pounds as compensation from his company. अब वो उसको 200 पाउंड का एक चेक देता है कि ये कंपनी ने कंपनसेशन मुआवजे के रूप में आपको दिए हैं। The man from the company tells the couple that Herbert becomes careless while operating the machine. कि हर्बर्ट की मौत का कारण क्या है कि वो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कलीग को उस मंकीज पा की कहानी बता रहा था और वो लापरवाह हो जाता है मशीन पर काम करते हुए। यस, इन दिस वे द कपल लॉस्ट देयर ओनली चाइल्ड। द ट्रेजेडी हॉरिफाइज अस। पहली बेटे ये ट्रेजेडी है यहाँ पर जो हमें भयभीत करती है। हाउ द ग्रेडी कपल लूज देयर सिंगल चाइल्ड for the sake of money. Yes, now they can, I mean to say Mr. White can wish for 2 more desire. Now he has become greedy. Now he doesn't much to lose. अब उसके पास ज़्यादा खोने को नहीं है, लेकिन फिर भी he tries to we can say try to make the remaining 2 wishes. अब वो 2 बची हुई विश को भी कोशिश करता है। Perhaps they may bring some change in his luck. Mrs. White insists on Mr. White to make for the second wish. She wants her son to come back alive. अब मिसिज वाइट है वो चाहती है कि आप दूसरी जो विश है, कामना है, इच्छा है, वो मांगो। और वो इच्छा क्या है कि उनका बेटा हर्बर्ट जिंदा वापस आ जाए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ही हैज़ डाइड। वो मर चुका है, वो कैसे वापस आ सकता है। बट मिस्टर वाइट नोज दैट दे विल नॉट बी एबल टू सी द म्यूटिलेटेड फेस ऑफ देयर सन। मिस्टर वाइट अच्छी तरह जानता है कि वो अपने बेटे का जो कटा फटा चेहरा है, मशीन में आ गया था, उसको नहीं देख पाएंगे। ही makes the second wish. Their son appears with a mutilated body.
दैट इज वी कैन से ब्लड स्टेन्ड, खून से लथपथ है, संधी हुई है। ए लाउड नॉकिंग एट द डोर इज हर्ड, दरवाजे पर एक आवाज भी आती है। मिसेज वाइट थिंक्स दैट हर्बर्ट हैज कम, मिसेज वाइट सोचती है कि उनका बेटा वापस आ गया। बट व्हेन सी द फेस, सी वी कैन से स्क्रीम्स,